Hello to all my learners. So today we are going to understand the chapter. The name of the chapter is The Friendly Mongoose, chapter number 2. Let us start with the reading. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. So we have a farmer who is discussing with a wife to have a pet so that when their son, as you can see in the picture, when their son grows up, he will have a companion because the son is not having any brother or sister. Also, there might not be any children around. So they thought that this pet will act as a companion. And you can also see the picture of the pet in the book. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. You can see the mongoose in the picture. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. Next page. Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. A lovely animal with two shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle. Cradle we call इन हिंदी वी कॉल इट पालना. ये जो आप रेक्टेंगुलर शेप का देख रहे हैं वुडन, इसको पालना यानी क्रैडल बोलते हैं. सो स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट देयर ग्रोथ. इन देयर 5 to 6 months जो बेबी मॉन्गूज था, इट हैड ग्रोन, इट हैड टू शाइनिंग ब्लैक आइज और एक बुशी टेल भी हो गई थी. बट द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी एंड इट वॉज द मोस्ट. वॉट डू बेबीज डू? बेबीज मोस्टली स्लीप. ठीक है, बेबीज नीड मच मोर स्लीप देन एडल्ट्स बिकॉज ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम इन द इनिशियल फेज. तो उनके लिए सोना बहुत ज़रूरी होता है. वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल cradle. Picking up the basket, she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. So the woman did not feel secure or protected to leave the child alone with the mongoose because mongoose is after all an animal. तो जो मदर थी और जो वाइफ थी फार्मर की, उसे ठीक नहीं लगता था mongoose को अपने बच्चे को mongoose के साथ अकेला छोड़ना. The farmer replies, You need not be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. Now you see this friendly word. Friendly means it acts as your friend. तो फार्मर का मानना है कि वो उसे हार्म नहीं करेगा बिकॉज इट इज़ अ फ्रेंडली एनिमल. इट इज़ एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो. The wife went away, and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at these fields not far away. So basically, the farmer left the child and the mongoose alone. तो क्या mongoose बेबी को अटैक कर देगा क्योंकि घर पे अब कोई नहीं है. हालांकि फार्मर कुछ ज़्यादा दूर नहीं है बट ही हैज़ लेफ्ट देम अलोन. Let us see what happens. He ran into some friends on the way back and did not return for quite some time. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. Groceries is daily food items. ठीक है, किचन का जो भी सामान होता है, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, ये सब ग्रोसरीज में आता है. तो वो मार्केट से आ गई. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her as was customary. Customary means traditional. Traditional means जो हमेशा से होता आया है. सो वो हमेशा उसे भाग करके वेलकम करता था. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड. जैसे ही mongoose को फार्मर की वाइफ ने देखा वो चिल्ला उठी. स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना. ब्लड, शी क्राइड, मीन्स शी क्राइड आउट खून. द फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose वर स्मीयर्ड विद ब्लड. स्पीयर्ड मीन पूरा ब्लड उसके मुंह पे रब्ड है, जैसे पूरा उसके फेस और पॉज पे ब्लड लगा हुआ है.
अब जैसे ही उसने ये देखा, शी थॉट दैट द mongoose has killed the baby. You wicked animal. Wicked means evil, devil. You wicked animal, you have killed my baby. She screamed hysterically. Hysterically का मतलब होता है जब हमारे अंदर बहुत वाइल्ड इमोशन हो जाता है, अनकंट्रोलेबल इमोशन हो जाता है, बिकॉज शी जस्ट इमेजिन अ मदर लूजिंग हर बेबी. तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसे ज़ोर से चिल्लाया, यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी. शी वॉज ब्लाइंड विद रेज. रेज मीन्स एंगर. रेज का मतलब होता है एंगर. गुस्से से वो बिल्कुल अंधी हो चुकी थी, मतलब उसे और कुछ नज़र नहीं आ रहा था. शी वॉज ओनली फिल्ड विद एंगर एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन दी हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्मीयर्ड mongoose. उसने क्या किया, आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर, डोर के पास जो भी बास्केट थी फुल ऑफ ग्रोसरीज, उसने बहुत ज़ोर से mongoose के सर पर दे मारा. एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल. द बेबी वॉज फास्ट asleep. पर बेबी तो बिल्कुल ठीक है, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, बेबी को कुछ नहीं हुआ है. बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक, टॉर्न एंड ब्लीडिंग. बट यहाँ पे देखिए, यू कैन सी अ स्नेक, है ना, यहाँ पे आपको एक स्नेक नज़र आएगा, और इट हैज़ ऑलरेडी डाइड, और ब्लीडिंग भी हो रही है. इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. लेकिन अब जब उसे सब कुछ समझ आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है. शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose. ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, वॉट हैव आई डन. नाउ शी इज़ फीलिंग वेरी बैड एंड शी इज़ फिल्ड विद रिग्रेट कि उसने ये क्या किया. उसने बिना कुछ सोचे समझे mongoose पर अटैक कर दिया, जबकि mongoose की इसमें कोई भी गलती नहीं थी. इनफैक्ट mongoose saved the life of the child from the snake. यानी इस व्यूमन ने, इस बच्चे की मदर ने, एक इनोसेंट एनिमल को पनिश कर दिया. शी क्राइड टचिंग द mongoose who lay dead and still, but it's already too late, he has already died. Unaware of her sobbing, the farmer's wife, who had acted hastily, hastily means quickly, मतलब आप एकदम से रिएक्ट कर देते हो, बिना कुछ सोचे समझे रिएक्ट कर देते हो, एंड रैशली, और रैशली मीन्स बहुत रूडली आपने रिएक्ट किया. स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose, देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग. वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम. दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र. Students, now comes the important part. As you have seen in this story, हमें अपने कोई भी डिसीजन क्विकली नहीं लेने चाहिए, और जो हमें दिखता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दैट इज़ ओनली राइट थिंग. जब तक हमें अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए, और जब तक हमें कॉइन के दोनों साइड्स ना दिख जाएं, तब तक हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए. आपने देखा, इन दिस स्टोरी द वुमेन did not have patience. What she saw with her eyes, she believed it instantly. अभी उसने अपने चाइल्ड को देखा भी नहीं था कि वो ठीक है भी या नहीं, लेकिन mongoose के फेस के ऊपर ब्लड देखते ही उसे लगा कि वो उसका बेबी मर चुका है, हालांकि बेबी ज़िंदा था. तो अगर उसने पेशेंस रखा होता, अगर उसने थोड़ी देर अपने आप को और अ, संभाले रखा होता, अपने एंगर को, एंगर विच इज़ कंसिडर्ड वेरी ईविल थिंग, हमें कभी भी कोई भी डिसीजन एंगर में नहीं लेना चाहिए. स्टूडेंट्स, वेन एवर यू फील एंग्री, फर्स्ट थिंग यू डू इज़ नेवर स्पीक एनीथिंग, क्योंकि गुस्से में हम दूसरों को गलत ही बोलते हैं. तो गुस्सा जब भी आए, आप कुछ मत बोलिए, शांत रहिए, और अपना डिसीजन हमेशा संभल कर लीजिए. शी एंडेड अप किलिंग mongoose, जिसने एक तरीके से, ही वॉज द सेवियर ऑफ द बेबी, उसने बेबी की जान बचाई. अगर mongoose नहीं होता तो शायद स्नेक बेबी को बाइट कर चुका होता और बेबी मर चुका होता. सो क्विक डिसीजंस आर ऑलवेज, इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग फॉर क्विक डिसीजंस, गलत डिसीजन लेके रोने से अच्छा है वी शुड वेट, थिंक एंड देन एक्ट. दिस इज़ द लेसन वी गेट फ्रॉम द स्टोरी. आपको और भी अगर कोई लेसन स्टोरी से मिलता है, तो कमेंट्स में आप अपना लेसन, जो भी आपने इसमें से सीखा, वो कमेंट्स में ज़रूर टाइप कीजिए. लेट अस go towards the question answers now. First question is, why did the farmer bring a baby mongoose into the house? So we know
that they had a son and they wanted to give him a companion. Therefore, they brought a baby mongoose into the house. Question number 2. Why did not the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? Because she was afraid that mongoose might attack the baby, because after all it is an animal. Question number 3. What was the farmer's comment on his wife's fears? Farmers commented, or farmers felt, that mongoose is a very friendly animal and there is no harm to the baby from the mongoose. Question number 4. Why did the farmer's wife strike the mongoose with her basket? Because she felt that mongoose had killed her baby and therefore, in anger, she ended up killing the mongoose. Did she repent her hasty action? Yes, she repented her hasty action, but it was too late because the mongoose had already lost his life. How does she know her repentance? How does she show her repentance? तो अपनी repentance कैसे show करती है? Because she runs back to the mongoose, hugs the mongoose, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है. Do you have a pet, a cat or a dog? If not, would you like one? How would you look after it? Are you for or against keeping birds in a cage as pets? तो आप लोग ज़रूर इस आंसर्स को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए. क्या हमारे घर में एक पेट होना चाहिए, कैट या डॉग? ठीक है, अगर होगा तो हम उसकी केयर कैसे करेंगे? और क्या बर्ड्स को केज में रखना सही डिसीजन है? आई फील दैट इट इज़ नॉट टू गुड टू कीप बर्ड्स इन अ केज बिकॉज दे आर मेंट टू फ्लाई. अगर कोई आपको एक रूम में बंद कर दे तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. तो नो वन लाइक्स टू लिमिट देयर फ्रीडम. किसी को भी अपनी फ्रीडम खोना अच्छा नहीं लगता. एक बर्ड का काम है उड़ना. अगर हम उसे केज में रखेंगे तो फिर उसका जो नेचुरल एबिलिटी है फ्लाइंग का वो मिस हो जाएगा. सो विद दिस आई एंड माई डिस्कशन ऑफ द चैप्टर द फ्रेंडली mongoose. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में अपने डाउट टाइप कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे आंसर्स प्रोवाइड करूँगा. थैंक यू सो मच.